Hello students, welcome to MDC Learning Standard FI BCom Subject EVS Chapter Solid Waste Management for Sustainable Society. In that we are going to study classification. Classification में types and sources is the main topic. So first इसका classification पढ़ने से पहला क्लास उसका मीनिंग पढ़ते हैं सॉलिड वेस्ट का. पहला वेस्ट का मीनिंग देखते हैं. Waste includes all the items that people no longer have any use for that material or that product, or either intend to get rid or have already discarded. Okay, already it has been discarded. ये नहीं चाहिए करके waste है. Then we have solid waste. Solid waste is a waste which is in the form of solid form, or which is in the form of semi-solid or containerized gaseous form. Okay, so इसका types: industrial waste, agricultural waste, hazardous waste, medical waste, we have radioactivity waste, we have household waste. These are the types of waste. Okay, first let us understand the household waste. Household waste, first point is municipal waste. Municipal waste is generated by household, commercial activities and other source activities are similar to those household and commercial enterprises. Okay, ये जो waste है ये माइनिंग, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, ये सब वेस्ट को इंक्लूड नहीं करता है. इसके अलावा नॉर्मल वेस्टेज जो अपना हाउस होल्ड एंड कमर्शियल पर्पज से निकला हुआ है. ओके, और ये जो गार्बेज है इसको मेनली किधर से ज़्यादा जनरेट होता है? अपना रेसिडेंशियल, अपना खुद का घर एंड इन कमर्शियल प्लेस. ओके, और अगर अपन देखा जाएगा तो देर आर मेनी पीपल जस्ट वेस्ट द प्रोडक्ट लाइक दैट इवन इन द हाउस ऑल्सो. ओके, so this waste has been traditionally been landfilled and remains the predominant management option in most countries. But however, some countries have taken significant steps to take away from these landfills. There are numerous potential impacts associated with this landfill of waste, which are including the productions of landfill. We can take the landfill gases, odors, flues. Then we have contaminated of soils, and groundwater is also being contaminated due to this waste. इससे क्या होता है? जो लैंड एरिया है गार्बेज डंप करके वो लैंड एरिया को ख़राब कर देते हैं. नॉट ओनली वो लैंड एरिया को, बहुत सारे फ्लाइज, बहुत सारे मस्कीटोज, बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स इन दैट नियर बाय गार्बेज एरिया, एंड इवन ग्राउंड वाटर को भी इफेक्ट करता है. ओके, देन वी हैव अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सेम थिंग, वैसा ही है, पर ये इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल. दिस वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल. अभी बायोडिग्रेडेबल मीन्स व्हाट? इसको अपन यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पज ऑल्सो. ओके, लाइक फूड वेस्टेज, गार्डन वेस्ट, पेपर एंड कार्डबोर्ड, इसको अपन ही यूज भी कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव पैकेजिंग वेस्ट. It's defined as any material which is used to contain and protect, handle, deliver it and present for the good products. Yes, इसके लिए वो पैकेजिंग इतना अच्छा से बनाते हैं, पर आपको तो मालूम है जितना पैकेजिंग रहेगा उतना वो वेस्ट रिमूव होता है. Okay, it comes out in the waste only because that packaging we are not going to use for any other purpose. Okay, और पैकेजिंग
आजकल इतना फर्म रहता है क्योंकि बहुत सारे गुड्स को पेरिशेबल करना पड़ता है, बहुत सारे गुड्स को स्टोर करना पड़ता है. Okay, whether it is a supermarket, whether it is rental store, whether it is a manufacturer, whether it is an industries, whether most important thing is whether it is transport companies, बहुत सारे जगह में वेस्टेज पैकेजिंग का बहुत निकलता है. इवन अपना घर पे भी अगर अपन 4 जन के लिए भी शॉपिंग करते हैं, अगर 4 जन का भी कॉस्ट्यूम्स खरीदते हैं अपन, ऑटोमेटिकली वो वेस्टेज में निकलता है, राइट. ओके, इवन एक छोटा प्रोडक्ट अपन अगर ऑर्डर करते हैं बाहर से तो वो आता है तो भी वो वेस्टेज ही आता है. ओके, देन वी अंडरस्टैंड अबाउट द इंडस्ट्रियल वेस्ट. Industrial waste is an hazardous waste. First point, which waste have been classified into hazardous depending upon the exit and particular characteristics. Okay, ये जो hazardous waste है ये ज़्यादा toxic substances को release करता है जिसके वजह से water, rivers, lakes ये सब खराब हो जाता है. Okay, and this main disposable route of hazardous waste is landfill. Okay, or any chemical treatment. This hazardous waste can be recycled or burned as a fuel. Okay, then second point that we are learning in the industrial waste is in industrial waste including manufacturing industries. Okay, this waste may pollute the nearby soil or adjacent water bodies. Also, they pollute the rivers, they pollute the lakes, they pollute the streams, river streams. Okay, and it is very difficult to clear it and make the water without contaminant, because once you just comes out from the waste that just comes out from the industries, it's not in a little amount, it is in a huge amount. सो उसके वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ता है. ओके, waste from this manufacturing sectors continues to rise because now there is national as well as international companies, industries are coming up which more use of technology and more waste are being carried forward. ओके, ये भी होता है साइड टू साइड जो अपन मालूम नहीं पड़ रहा है, पर ये चीज़ें सब जगह में हो रहे हैं. ओके, और यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट मिनिमाइज द मटेरियल एज वेल एज द एनर्जी यूसेज. ओके, then we will learn about the construction and demolition waste, which is very big waste. इंडस्ट्रीज है जैसा वाटर बॉडीज को भी स्पॉइल करता है, वैसे ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट किधर वेस्ट जाके डालने का वो भी नहीं मालूम पड़ता है लोगों को, क्योंकि जितना अपन बिल्ड करते हैं उतना वेस्टेज बढ़ता है, उससे ज़्यादा जब उसको डिमोलिशन करते हैं उससे वेस्ट और बढ़ता है. ओके, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे, उसके बाद वो मट्टी वो सब किधर जाएगा कुछ नहीं मालूम, राइट. उतना वेस्टेज वो बढ़ते ही जा रहा है. ओके, और कंस्ट्रक्शन वेस्ट तो आजकल इतना बढ़ रहा है क्योंकि हर एक जगह में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर एक जगह में कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ओके, all the waste is incredibly difficult for the builder to manage. Very difficult, it's very difficult for the builder to manage this waste and then use it more efficiently because the wastage are more amount और उसको हर जगह में बिल्डर्स लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, सो बाय लास्ट क्या होता है, ज़्यादा वेस्ट इंक्रीज ही होता है. अंडरस्टैंडिंग गर्ल्स? Then we have a mining waste. Mining waste arises from prospecting, extractions, treatment and storage of minerals. It is made up of topsoil, overburden, waste rock, waste from processing of the ore body. It may also include the processed water, processed chemical and portions of the remaining materials. Okay, and this major concern for mining waste is in the large volumes, as I said for the construction waste also. Okay, जितना ज़्यादा mining उतना ज़्यादा wastage. Okay, and this wastage occupies valuable land which are very harmful on the stream life when they are deposited nearby the drainage area.
Okay, so mining waste are very huge and very difficult to compensate for this waste. Then we have waste from electrical and electronic equipments. बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, ये वेस्ट तो आजकल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे घर पे भी हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहता है, और हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो एज रहता है, जो उसका रनिंग कैपेसिटी रहता है, वो 5 साल से 6-7 साल तक ही रहता है. वो लोग बोलते हैं 10 साल तक होता है, पर आजकल का वैसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलता नहीं है. इवन अपना एंड्रॉयड फ़ोन तुम 20-25 हज़ार का भी लो तो भी वो 3 से 4 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल चलेगा, बस उसके ऊपर वो चलेगा नहीं वो प्रोडक्ट. ओके, तो इतना वेस्टेज निकलेगा अभी, हर 3-3 साल में इतना प्रोडक्ट वेस्टेज निकलेगा. और द मोस्ट ये वेस्ट बढ़ने ही वाला है, सॉलिड वेस्ट. ओके, एट द मोस्ट ये वेस्ट इंक्रीज होने ही वाला है, ये कभी कम होने वाला नहीं है. और इसको रख के बहुत सारा वेस्ट बढ़ जाएगा, और बहुत सारा वेस्ट से बहुत सारा डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज होंगे. और इसको जिधर अपन रखते हैं वही प्लेस का जो लैंड एरिया है खराब हो जाएगा. ओके, कोई चीज़ को अपन रिसाइकल कर सकते, कोई चीज़ को अपन रिसाइकल नहीं कर सकते हैं. इक्विपमेंट में अगर रिसाइकल कर भी सकते हैं, अगर अपने पास अच्छे से पैसा, काफ़ी पैसा है उसको नया खरीदने के लिए, वो फेंक के नया ही ले लेंगे ना. यस, so this kind of electronic waste is also being found, and which is very hazardous substances, and this problems arises nowadays very much because मेरा खुद का घर पे ही उतना सारा सेल फोन से जो वेस्ट है, वैसा कितने लोगों के घर पे कितना वेस्टेज रहेगा. वो एक ही दिन बाहर आता है, दिवाली को जब अपन साफ़ करते हैं या क्रिसमस को जब अपन साफ़ करते हैं तभी वो बाहर आता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? Wastage is wastage, right? Then we'll learn about the biomedical waste. Biomedical waste is the wastage of medical things, that is our hospital waste. Okay, this biomedical waste has been generated during the diagnosis, treatment, or immunizations of human being or animals, or in any research activities. Biomedical waste have been more, and there are many wastes which have been generated in hospitals, in nursing homes, clinics, medical laboratories, blood banks. Okay, ये सब जगह में तो वेस्टेज, बायोमेडिकल वेस्टेज तो बहुत सारा जनरेट होता है, और बहुत सारा वेस्टेज बढ़ते ही रहता है. ओके, इसमें उन लोग ने 10 कैटेगरी आपको बताया है. आपका टेक्स्ट बुक में ये 10 कैटेगरी है. ये 10 कैटेगरी डिफ्रेंशिएट करता है कौन सा कैटेगरी में ये वेस्ट इंक्लूड होता है. जो मैं आपको अभी साथ में बढ़ाई हूँ वो इसको बाइफोग्रेट किया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका ह्यूमन एंटोमेकल वेस्ट, जो ह्यूमन टिश्यू से बनता है, ऑर्गन से जनरेट होता है, और बॉडी पार्ट्स. ओके, देन वी हैव एनिमल वेस्ट, जो एनिमल टिश्यूज है, एनिमल ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स. देन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है. देन वी हैव माइक्रो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, जो लेबोरेटरी से वेस्टेज होता है. ओके, जो वैक्सीन, फिर जो टॉक्सिन्स है, फिर डिशेस है, डिवाइसेस है, ये सब वेस्टेज से निकलता है. देन वी हैव वेस्ट श्राप्स, दैट इज निडल्स, सिराइंस, देन ब्लेड्स, ग्लास, इसको बोलते हैं अपन. देन वी हैव डिस्कार्डेड मेडिसिन्स एंड सियोटॉक्सिक ड्रग्स, outdated medicines. Then we have solid waste, कॉटन, जो हॉस्पिटल्स में कॉटन्स निकलता है वो, फिर सॉलिड प्लास्टर्स, और बहुत सारा सॉलिड वेस्ट निकलता है, राइट. देन वी हैव लिक्विड वेस्ट, सेमी सॉलिड, लाइक दैट. ओके,
दैट इज वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम लेबोरेटरी एंड वॉशिंग क्लीनिंग डिसइंफेक्टिंग करने का प्रोडक्ट में जो भी वेस्टेज निकलता है वो. देन वी हैव इंक्रिनेशंस एशेस जो अपन बर्न करते हैं उसमें एशेस निकलता है वो. एंड लास्ट वी हैव केमिकल वेस्ट. ओके, डिसइंफेक्शन करने के लिए उसको ड्रेन करना पड़ता है. तो ये सब कैटेगरी है आपको, जो वेस्ट कैसे कैसा डिफाइन हुआ है, कौन सा कैटेगरी में पड़ता है. 1 to 10 का कैटेगरी वो लोग ने बताया है. और ये अभी का पैंडमिक टाइम में तो ज़्यादा ही है, पर दिस वेस्ट कम्स, इसको अपन रीयूज़ भी नहीं कर सकते हैं फटाफट. वी कांट रीयूज़ इट ऑल्सो एंड वी कांट कीप इट ऑल्सो. ओके, सो इस पर ये बायोमेडिकल वेस्ट अभी पैंडमिक में ज़्यादा हुआ है. दैट डजंट मीन ये ज़्यादा होते ही जाएगा, इसका कम रिडक्शन हो सकता है, पर इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना पड़ेगा. इसके लिए बहुत डिफरेंट मेथड्स अपनाना पड़ेगा जिससे अपन ये बायोमेडिकल वेस्ट कम कर सकते हैं. थैंक यू.